So today's topic is the calculation of pH of a weak acid. But to calculate the pH of a weak acid, we don't know what is the concentration of hydrogen ion because pH is based on the concentration of hydrogen ion and its definition from our previous lesson. You know that pH is equal to the negative log to the base 10 of hydrogen ion concentration. So for strong acid, we know that strong acids are fully ionized. So what we did was that we take this hydrogen ion concentration from the concentration of the acid. But for weak acid, we cannot straight away take the concentration as that of the acid because the acid is not fully ionized and we are not aware how much it is ionized. So to calculate the pH of a weak acid, what we need to know is that how much it has ionized. So for that purpose, we are now touching the topic of dissociation constant of an acid, which is denoted by Ka. So we are now having a fourth kind. Two we have studied in Kc and Kp in A1, As, and then Kw in the previous lesson in A2. And now we are studying another constant called acid dissociation constant of a weak acid. We can write it for a strong acid as well. So acid dissociation constant. This constant deals with the reactions, the dissociation of acids only. So for example, you have a weak acid such as ethanoic acid and you dissolve it in water and we know that it is not fully ionized. So what we do is that we write its ionic equation like this or simply like this. So you add it into water, and when you add it into water, so in order to calculate the pH of a weak acid, we are studying its dissociation in water. Weak acid dissociates in water to form hydronium ion and the negative ion anion of the acid. To simplify equation is ethanoic acid partially ionizes, so we write it as an equilibrium reaction, reversible reaction to form hydrogen ion and ethanoate ion. So, for example, if we take a weak acid as HA, if we take a weak acid as HA, just an example, A can be a negative ion such as ethanoate ion, or so it can be CH3COH, and it partially ionizes to form hydrogen ion. It partially ionizes to form hydrogen ion plus A negative ion plus A negative ion. So we will put a reversible reaction into it. So it's a general representation of a weak acid. A reversible arrow shows that it ionizes partially to form hydrogen ion and A negative ion. So for that purpose, if you write its Kc, so ethanoic acid का Kc आप देख रहे हैं, it is equal to the product's concentration divided by the concentration of reactant. So वही formula यहाँ भी लग रहा है. But now we are dealing with the reaction of an dissociation. Acid dissociation. So you have the ions on right hand side and unionized acid on the left hand side. So case यही Kc जो था equilibrium constant for weak acid, we now call it as Ka. इसी Kc को आप Ka कहोगे. तो अगर जनरल फॉर्म में हम Ka का एक्सप्रेशन लिखें, तो जनरल फॉर्म में Ka का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ यूं बनेगा. Ka इज इक्वल टू, ये हम जनरल लिख रहे हैं किसी भी एसिड के लिए हो सकता है, इट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन multiplied by the concentration of its negative ion, whatever the negative ion it is, ठीक है, divided by the concentration of unionized acid, divided by the concentration of unionized acid. So Ka
ये जो आपने लिखा है ये एक जनरल फॉर्म में है। तो आयंस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच ए। इस इक्वेशन में हमने एक चीज़ और एज्यूम की हुई है, और वो ये है कि वी आर डीलिंग विद मोनोप्रोटिक मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब है कि हम उसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी एसिड में एक से ज़्यादा आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन भी हों, तो हम इसकी सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन के हिसाब से ही इक्वेशन लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर के के एक्सप्रेशन में एच प्लस का स्क्वायर भी आ जाएगा, और फिर नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो वो इतने कॉम्प्लेक्सिटी में वी डोंट नीड टू गो। सो बस वी नीड टू हैव मोनोप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉस्फोरिक एसिड भी लेते हैं, तो हम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो हम उसके लिए अगर हमने Ka लिखना होगा तो H3PO4, तो उसकी आयनाइजेशन हम यूं दिखाएंगे, H प्लस प्लस H प्लस प्लस हम H। सर जी सर वो फाक कह रहा है कि उसका नेट चला गया था, तो उसको फिर से ऐड कर लें। अच्छा, PO4-2 मैं कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने जो है ये इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें भी आप देख रहे हो कि हमने सिर्फ एक एच ही इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट किया है। हालांकि फॉस्फोरिक एसिड से 3 एच निकल सकते हैं, लेकिन हमने तीनों एच इकट्ठे नहीं निकालने। वी विल टेक एच प्लस आयंस वन बाय वन। So this is a reversible reaction of ionization of phosphoric acid. Ionization of phosphoric acid. So this is how we write reactions. So we always ionize only one hydrogen ion from the acid, whether it can ionize more than once. But phosphoric acid की जैसे हमने H3PO4 reversible reaction to form H plus plus H2PO4-2, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि इसकी फर्दर करो, तो फिर आप इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाओगे, और हर स्टेप के लिए एक अलग के ए होगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका बनेगा H2PO4 which will ionize to form H plus H plus plus it will ionize to form H plus plus। अब एक H निकल गया, तो नाउ वी हैव वन H लेफ्ट, HPO4। और जितने H कम होते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका जो है चेंज होता जाएगा। तो इसका चार्ज बनेगा -2, सॉरी इसको करेक्शन करनी है। H प्लीज इसकी करेक्शन कर लीजिए, ये -1 है, और लेट्स रिमूव इट। आयशा तूर, this is -1 and this is going to be -2। HPO4-2, और इसकी करेक्शन भी हमें करने की ज़रूरत है। ये HPO4-1 था। लेट्स राइट इट अगेन। ये so second ionization of H2PO4, H2PO4-1 will form HPO4-2 and plus H plus। आपने इसको स्टेप वाइज जो है वो ब्रेक डाउन करते जाना है। एंड दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। H2PO4-1 will release another hydrogen ion and form HPO4-2 plus H plus। And finally एक और इक्वेशन इसकी बन जाएगी आयनाइजेशन की, that will give us H
PO4 HPO4 minus 2 HPO4 minus 2 will ionize it to form PO4 minus 3 plus H plus। तो ये तीन दफ़ा आयनाइजेशन होगी और हर आयनाइजेशन जो है वो आप देख रहे हैं उन सब में एक ही H प्लस निकल रहा है। तो आपको अगर के ए निकालना है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो ये किसी एक इक्वेशन का अलग अलग निकलेगा। सो एवरी इक्वेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट आयनाइजेशन, second ionization and third ionization, you see in any of the reversible reaction you have released only one hydrogen ion, you have released only one hydrogen ion, and the remaining ion is your anion. So there are three dissociations of phosphoric acid, and there are three different Ka expressions, acid dissociation expressions. So in what I was telling you that Ka expression is written for an acid, and we write it just the way we write Kc, products concentration divided by reactants concentration. बट रेस टू दी पावर का इसमें सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि वी आर डीलिंग विद मोनो, वी आर टेकिंग एनी डिसोसिएशन एज मोनोप्रोटिक डिसोसिएशन, we will dissociate only one hydrogen ion and the remaining ion will be the negative ion. So इसकी एग्जांपल में अब मैंने आपके सामने एक जनरल एग्जांपल भी लिखी है, HA if the weak acid it will ionizes to form H plus only one hydrogen ion and one mole of negative ion whichever the negative ion is. तो एथेनोइक एसिड में तो वैसे भी देखने में तो चार एसिड हाइड्रोजन आयन नजर आते हैं, CH3COH में टोटल 4H है, लेकिन इसमें आयनाइजेबल तो एक ही H होता है। तो इट विल आयनाइजेस टू फॉर्म CH3CO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। तो इसका के एक्सप्रेशन जिस तरह Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं, वी हैव रिटन इट द सेम वे। So it is equal to the product of ionic concentrations of a weak acid to divided by to the concentration of unionized जो है complete acid होता है वो acid। तो इस तरह H plus A negative की टर्म में भी वैसे ही लिखा आपने, H plus concentration into A negative concentration divided by H A concentration। Then I have shown you this whole concept for phosphoric acid। तो phosphoric acid के लिए भी आपने तीनों हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं निकालने, आपने जब उसका K एक्सप्रेशन लिखना होगा तो उसके लिए तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन आयन डिसोसिएशन, सेकंड हाइड्रोजन आयन डिसोसिएशन एंड देन थर्ड हाइड्रोजन आयन डिसोसिएशन। सो वी कैन हैव थ्री Ka वैल्यूज, Ka1, Ka2 एंड Ka3। तो Ka1 में आप फर्स्ट हाइड्रोजन आयन जब निकालोगे तो उसकी उसकी के एक्सप्रेशन लिखोगे जो कि होगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस वन होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। सेकेंड वाले के लिए होगा के एक्सप्रेशन इज इक्वल टू HPO4 minus 2 into hydrogen ion concentration divided by HPO4 minus 1, HPO4 minus 1, यहाँ भी 4 मिसिंग रह गया हुआ है, HPO4 minus 1। तो ये आपके पास आ गया। थर्ड डिसोसिएशन के लिए के ये आप लिखोगे PO4 minus 3, PO4 minus 3। तो यहाँ पर भी इसको हम ठीक कर लीजिए जी, ये करेक्शन है, इट इज PO4 minus 3। ये PO4 minus 3 है जी, तो इसको करेक्शन कर लें। ये दिस इज PO4 minus 3 and hydrogen ion। So these are three different dissociations। तो लेकिन के ए एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि सबके लिए एक ही निकल रहा है, H प्लस इंटू नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अनआयनाइज्ड एसिड, जो भी आप इसको आप आयनाइज कर रहे हो। तो अगर आप इसके यूनिट्स निकालें तो यू हैव मोल पर डी एम क्यूब इंटू मोल पर टी एम क्यूब डिवाइडेड बाई मोल पर डी एम क्यूब। तो इसलिए आपके पास जो इसका यूनिट बनेगा वो हमेशा के ए का यूनिट, क्योंकि आप मोनोप्रोटिक एसिड से चल रहे हैं, तो इस यूनिट इज ऑलवेज मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब, डी एम माइनस 3।
ऑलवेज मोल पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट चेंज नहीं होता, के ए का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब में ही रहता है। सो दिस इज हाउ वी राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो के ए की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यूजुअली एट 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और हमें ये भी पता लग सकता है कि उससे पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए टेल्स अस, the Ka value tells us if the value of Ka is higher, if the value of Ka is higher, यहाँ पर high value of Ka, if you see my underline, अगर Ka की वैल्यू की बड़ी वैल्यू आती है जैसे 40 मोल पर डीएम की, is a very large value of Ka, it indicates that the position of the equilibrium lies to the right and the acid is almost completely ionized. तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अगर आप Ka लिखोगे भी तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। और के वैल्यू बड़ी कब आएगी, जब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी कि न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो कम हो, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो। तो आपने जो है वो अगर आपकी के की वैल्यू बड़ी आएगी, इसका मतलब है कि आपके राइट हैंड साइड के ऊपर जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है अनआयनाइज्ड एसिड की वो कम है। और ये प्रूव करता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज एन एसिड विच फुली आयनाइजेस फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। उसके अगेंस्ट अगर के ए वैल्यू छोटी है, a low value of Ka, so it means that it indicates, this indicates that the position of the equilibrium lies to the left and the acid is only slightly ionized and exists mainly as Ha. So it exists mainly as Ha, unionized acid molecules, and compared comparatively few H plus and A minus ions. तो इसकी के ए वैल्यू अगर आपके पास किसी भी एसिड की लिखी हो और आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, सपोज 3 एसिड्स की के ए दे देता है आपको और वो कहता है बताओ कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है, विच ऑफ देम इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो व्हाट यू डू इज यू कंपेयर द के ए वैल्यूज। The larger the Ka value, the stronger is the acid, because the greater the concentration of ions and lesser is the concentration of unionized acid. Whereas smaller the value of Ka, weaker is the acid, because now the equilibrium is towards left hand side and there is small concentration of hydrogen ions and large concentration of unionized acid. तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर आप मैथ्स में करते हैं, अगर ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी होंगी और नीचे वाली वैल्यूज छोटी होंगी तो वो जो है आपका के वैल्यू बड़ा आएगा। और इसके रिवर्स में अगर के वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है कि आपके न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो अब के एक्सप्रेशन में अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो ऐसा होगा। अगर के की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये आपने देखना है कि के वैल्यू इज कंप्लीट पिक्चर of what kind of acid you are dealing with, whether it is strong acid or a weak acid. ठीक है, stronger acids have greater Ka value and it's a comparative analysis. जितनी Ka value बड़ी होती जाएगी उतना stronger होता जाएगा। Even HCl, HNO3 को भी अगर आप compare करोगे तो आप उनकी Ka value same नहीं है। ठीक है, जिसकी Ka value ज़्यादा होगी वो stronger होगा comparative to one जिसकी Ka value छोटी होगी। तो acid dissociation constant tells us that whether the acid is strong or weak. Now we are moving on to the calculation of the pH. Moving on to the calculation of pH. Ka वैल्यू से pH कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें के एक्सप्रेशन, हमारे पास के वैल्यूज हैं, अब आप ये देखिए कि ये आपको के वैल्यू देगी नाइट्रिक एसिड की अबाउट 40 है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की जो सल्फ्यूरस एसिड की जो फर्स्ट डिसोसिएशन की वैल्यू वो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 है, क्वाइट स्मॉल। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरस एसिड इज क्वाइट वीकर। एंड एज यू सी, अगर मैं एथेनोइक एसिड की वैल्यू देखूं तो इट इज 1.7 इंटू 10⁻⁵ विच इज इवन स्मॉलर। और एथेनोइक एसिड से प्रोपानोइक एसिड में जाएं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी और छोटी है, स्लाइटली लेस है, 1.3 इंटू 10⁻⁵।
so it's further weaker. And if you go towards water, so it is having a value of 1 into 10 is power minus 14, जो इसकी KW है वो तो KW इसको कहते हैं, और ये सबसे कम है ऑफ ऑल दीज इन द टेबल। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जी वैसे भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अगर के हो जाए तो ये न्यूट्रल हो जाती है सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज नाउ न्यूट्रल। इससे ऊपर आप -12 -11 ये अब आपकी के वैल्यू बढ़ी होती जा रही है। इफ यू गो फ्रॉम बॉटम टू अप, तो ये बता रहा है कि आपकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आपकी आयनाइजेशन भी बढ़ रही है। नाउ कम्स कैलकुलेशन ऑफ के, कैलकुलेटिंग के फॉर वीक एसिड। तो अगर क्वेश्चन में आपको जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दी जाए, ठीक है जी, तो एसिड और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी जाए, तो आप उसको जो है आप उसकी के ए वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने ये देखिए, वी हैव assumed that we are dealing with monoprotic acids. So this is a general formula for Ka। अब आपने क्या करना है, अगर जो भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको दी जाएगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उसके नेगेटिव आयन की भी होगी। ये हमेशा 1:1:1 में ही होते हैं। तो दे हमेशा 1:1 में होते हैं। सो देयर दैट्स वाई H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका जो के एक्सप्रेशन है फिर वो सिंप्लीफाइड होके ये बन जाया करेगा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एच ए कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह करने से आप उसकी के ए वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, के ए वैल्यू को इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास एसिड कॉन्सेंट्रेशन हो और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। If you have acid concentration and hydrogen ion concentration, you can do it. So question number 4 लिखा हुआ है, calculate the value of Ka for methanoic acid, a solution of 0.010 mole per dm की methanoic acid has a pH of 2.90। अच्छा, अब उसने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दी हुई लेकिन pH दी हुई है। तो हमने in previous lesson we have learned that we can convert the pH to hydrogen ion concentration, and the formula of hydrogen ion concentration is 10 raised to the power minus pH। तो आप उससे करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आई। अब आप क्या करोगे, के एक्सप्रेशन फॉर मैथानोइक एसिड, मैथानोइक एसिड की इक्वेशन ये बनेगी जनरल फॉर्म से ही हम उसको डील कर लेते हैं। सो इट विल बी HCOOH will ionizes to form HCOO negative, HCOO negative plus H plus। तो ये आपकी इसकी आयनाइजेशन हो गई। अब आप इसके लिए के एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो आयंस ओवर एसिड आ जाएगा, जो कि आपके पास स्टेप नंबर 2 में से लिखा हुआ है। क्योंकि दोनों 1:1 में है, एसिड भी हाइड्रोजन आयन भी और HCO भी, दे आर 1 इन अ रेशो ऑफ 1:1। इट इज इन अ रेशो ऑफ 1:1। जी, तो इसलिए 1:1, इसलिए आपके पास जो फार्मूला है के का वो बन जाएगा H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई HCOH। अब आपके पास H प्लस की वैल्यू आपके पास है, वो के एक्सप्रेशन में पुट इन करें 1.26 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई है और 0.010 वो उसमें डालिए तो आपके पास के ए की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। और के ए की जो वैल्यू इसकी निकल रही है वो है 1.59 इंटू 10⁻⁻⁴, which is a small value and it tells us that ethanoic acid is quite weak acid। तो आप इस तरह के, तो इसका मतलब है के ए के लिए whenever you need to find Ka, you need to have hydrogen ion concentration and you need to have the acid concentration। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट डायरेक्ट नहीं दी हुई तो आप पीएच से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लेंगे तो फिर पीएच दी होगी। सो यूजिंग द पीएच, फर्स्ट थिंग यू नीड इट टू फाइंड द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, then using the formula you can find the Ka।
दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड इन P4, तो 2 मार्क्स से ज्यादा इस क्वेश्चन पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये Ka निकालने का तरीका है। अभी तक हमने pH ऑफ एसिड नहीं निकाली। pH ऑफ द एसिड इस क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हम जो है वी विल डू द कैलकुलेशन ऑफ pH